Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hello Vishal, welcome to eTimes TV. How are you doing? Very good, Vijaya. Lakshmi, I'm glad to talk to you. Tell me. Same here. And Vishal, you have been part of this industry for so long now. What made you take up this decision of doing Bigg Boss? Nobody decides on going to Bigg Boss. Bigg Boss decides who he wants to come into his house. And अगर लोग आपको बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो Bigg Boss मुझे बहुत सालों से बुला रहे हैं लेकिन मैं ना I'm busy and you know the money didn't work out and you see I've been so busy with work. I don't want to go to this cheap show यार. People only fight there. वो सब झूठ बोल रहे हैं. वो लोग हैं जो फोन कर करके पूछ रहे हैं हेलो इस साल चांस है क्या? नहीं मैं पैसे कम कर रहा हूँ ना. अरे रख मत फ्री में करता हूँ. हेलो फ्री में. लोग हैं so सब झूठ बोल रहे हैं. Nothing like that. It's the biggest show on television. It's hosted by superstar Salman Khan. The stage cannot be bigger than that. And during this pandemic, when people have no work and people have lost on their work, if I'm lucky enough to get into a house where I can entertain people, I can be watched and I can bring smiles to someone's face, there was no point of saying no to this show. Yeah. And Vishal, जैसे मैंने बोला कि you have been in this industry for so long now, you have always entertained people through characters. Yeah. विशाल पर्सनल लाइफ में कैसे हैं वो ज्यादा लोग नहीं जानते, ऑडियंस स्पेशली नहीं जानती. एंड एक एक्टर जो है वो कैरेक्टर के मीडियम से लोगों के घर घर तक पहुंचता है. हाउ रेडी एंड कंफर्टेबल आर यू टू नाउ एक्चुअली शोकेस द रियल विशाल टू एवरीवन एंड हाउ ओपन आर यू टू टेल देम योर फ्लॉज? Vijay Lakshmi, this is the first time in the entire day someone asked me this, and I'm glad you asked me this because an actor lives for his name. Yeah. Because and mostly television mein what happens is people know you by your character name. So whenever I go out, still people call me Birbal. Arey Birbal ji. So and people call me and ask me for advice. These young kids, I get calls from, I don't know where they get my number from. They call me and ask me कि सर Birbal ji, मैं ना 3 दिन बाद मेरी एग्जाम है, मैंने कुछ अभी तक पढ़ाई नहीं की है, मैं क्या करूँ? So I feel overwhelmed, of course, but then now I want people to know me by my name. I want people to know Vishal Kotin. और मुझे अपनी सच्चाई दिखाने में कोई शर्मिंदगी नहीं है क्योंकि मैं अपने पास से अपने लाइफ से सिर्फ प्राउड फील करता हूँ, शर्मिंदा नहीं. मैं बहुत ही छोटे इलाके से आता हूँ, मैं बहुत ही गुंडाई वाले इलाके से आता हूँ, मैं बहुत ही दबंगाई इलाके से आता हूँ. I'm born and brought up in the gullies of Mumbai from an area called Dagdi Chawl, which is in between Kala Chowki and Lal Bagh. So I come from a very, very, very poor family. I still remember that we lived in a very small house where my mom used to cook rice and it was not enough. So she would just drink the kanji. It's called the kanji, jo pani hota hai, rice ka. She would drink that and give the rice to me and my dad because that would not be enough if she ate it. So I come from that area. I have put papers in लोगों के घर पे जाके न्यूज़पेपर डाला है सुबह. I have वो मिल्क बॉटल्स होते थे जो डेयरी में मिलती थी, गवर्नमेंट मिल्क बॉटल्स, वो लोगों के घर तक पहुंचाया मैंने. So I've done all odd kinds of job, but my mom and dad put me in a very good school because they thought that if he has to reach somewhere in life from here on, he has to have good education. So they put me in Don Bosco's. So I went to Don Bosco's. I studied. I worked hard, and here I am. I'm an MBA in finance from one of the best universities of India now. So this is the real me. I'm proud of the real me. So why not show it to the world? Also, there are a lot of street kids. There are a lot of small kids still in my area who feel that they cannot make it big in life. The reason being they are put down in life. उन्हें बोला जाता है कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर, गैरेज वाला का बेटा गैरेज वाला, वॉचमैन का बेटा वॉचमैन बनेगा. हर वो बच्चा जिसको बोला जाता है तो तुझे इंग्लिश नहीं आती तो अनपढ़ है. मैं उसे बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज नॉट नॉलेज. अंग्रेजी भाषा है, ज्ञान नहीं. Now here I am standing speaking spick and span English, proud of what I am doing. लेकिन अब भी मैं हिंदी में बात करने में विश्वास रखता हूँ कि वही हमारी राष्ट्रभाषा है. हर वो बच्चा जिसे स्कूल में ना उसका कपड़ा फटा है इसलिए उसको घर भेज दिया जाता था. हर वो बच्चा जो पीटी क्लास में सर का तेल निकाल के जूते पे लगाता था क्योंकि आज डांट पड़ेगी, शू पॉलिश के पैसे नहीं है. हर वो बच्चा जो जिसके शर्ट पे क्रीज नहीं होते थे इसलिए उसे पीछे खड़ा कर दिया जाता था कि यू कम इन फ्रंट, यू गो बैक, आपकी शर्ट पे इस्त्री नहीं है. ऑल दीज थिंग्स हैव हैपेंड टू मी.
आई एम टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, उस हर बच्चे का जवाब है विशाल कोटियन. So Vishal Kotian has reached wherever he's reached because of his hard work and because of his blessing. So मैं ये लाइन बहुत बार बोला हूँ, which is very true for me. लोग मुझे बोलते थे कि तुझे अपने सपने बदलने होंगे सच्चाई से मेल खाने की. मैंने बोला मैं अपना सच्चाई बदलेगा जो अपने सपने से मेल खाएगा. Wow. So life has been like that for me and सपना सच हो गया. आज मैं स्टेज पे खड़ा होऊंगा सलमान खान के साथ, वही सलमान खान जिनकी फिल्मों के टिकट में ब्लैक किया करता था. मैंने सलमान खान की 2 फिल्मों के टिकट ब्लैक किए. एक था वीर गति और जो ऐसी फिल्म, हाँ वीर गति, नैनम चिंदंती श्रस्तानी नैनम धरती पावक, मैं वो फिल्म लगी थी सत्यम सचिनम सुंदरम करके थिएटर हुआ करती थी वर्ली में मेरे घर के यहाँ. तो वहां के सब टिकट वाले पहचान के थे, वहां से पीछे से हम लोग टिकट निकाल लेते थे और ब्लैक करते. अब जो फेमस फिल्म होती थी ना बड़ी उनकी टिकट मुझे नहीं मिलती थी, मैं बच्चा था. वो जो 18-19 साल के बच्चे थे उन लोग ले जाते थे. तो जो ऐसी छोटी फिल्म, अभी छोटी फिल्म नहीं है, सलमान सर की फिल्म है, लेकिन उस वक्त वो फिल्म इतनी चली नहीं थी. मतलब आई कैन टेल सलमान सर ऑन हिज फेस दैट सर उस फिल्म से आपसे ज्यादा मुझे फायदा हुआ. क्योंकि मैंने उसका टिकट ब्लैक करके 4th का फीस भरा है. और फिर और एक फिल्म थी बंधन, जब मैं 9th में था. जीजा जी जो बोलेंगे मैं वो करूंगा. रंबा के साथ, रंबा, जैकी श्रॉफ एंड अश्विनी भावे, आई थिंक अश्विनी भावे. yes I still remember the name. तो वो फिल्म का भी टिकट मैंने ब्लैक किया है और मैंने अपने 9th स्टैंडर्ड की फीस भरी है. सो मैं तो उस बैकग्राउंड से आता हूँ. सो सलमान सर के साथ जिस हीरो का मैं आई यूज्ड टू सेल टिकट इन ब्लैक, इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन स्टेज राइट नेक्स्ट टू हिम, शोल्डर टू शोल्डर, फिर तो सपना पूरा हो ही गया ना यार. हाँ, राइट. एंड आई एम श्योर ये सच्चाई जो है इसके साथ बहुत लोग रिलेट करेंगे घर के अंदर. लेकिन विशाल, बिग बॉस की अगर बात करें, बिग बॉस एक ऐसा घर है जहाँ पे हर साल कोई ना कोई ऐसा कंटेस्टेंट आता है जो पर्पसली लोगों को पोक करता है, इंस्टिगेट करता है ताकि लड़ाई झगड़े हो घर में. ऐसा कोई अगर आपके साथ जबरदस्ती पोक करने की आपको कोशिश करता है, हाउ आर यू गोइंग टू डील विद दीज फाइट्स? I'll tell you ना, जिंदगी में ना 2 तरह के झगड़े होते हैं. एक जो सच होता है और एक जो दिखावे का होता है. बिग बॉस के अंदर जितने भी झगड़े होते हैं ना वो दिखावे का होता है. See, I'll tell you, when मेरे इलाके में जब झगड़े होते हैं ना तो डर लगता है. जब मैं दगड़ी चाल में रहता था, वहां पे जब बाम्बू और तलवारें निकलती थी ना तो डर लगता था, क्योंकि मुझे पता था ये मारेंगे. जब मुझे पता है कि 2 लोग टुंडा फाइटिंग, आई कॉल इट टुंडा फाइटिंग, 2 लोग हाथ पीछे रख के लड़ने वाले हैं, दोनों को पता है कि हाथ नहीं उठाएगा, दोनों हुल देने वाले. ए तू क्या करेगा, पहले तू बता. नहीं मैं क्यों बताऊं, तू बता ना. ए तू जा रहे, तू हाथ लगा, मैं क्यों हाथ लगाऊं, पहले तू लगा. ये फाइटिंग जो है ना, ये दिखावे वाली फाइटिंग है. फिर इससे क्या डरना. मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, पता है पंचिंग बैग को मारना आसान क्यों होता है? हैव यू एवर रियलाइज कि पंचिंग बैग को मारना आसान क्यों होता है? रिएक्शन नहीं आएगा वहां से. एग्जैक्टली, पंचिंग बैग पलट के नहीं मारता. So it is very easy to have a fake fight. ये सब ये बचकान चीजें मैंने बचपन से देखी. So all these things don't scare me. मुझे हंसी आएगी. Trust me, जब भी मैं ऐसा मुझे कोई इंस्टिगेट करेगा ना, मैं उसके मुंह पे हंस दूंगा जाके. मुझे बहुत हंसी आएगी. Because I know, I've seen life and this is fake. असली लड़ाई ऐसी नहीं होती. So मैं हंस दूंगा उसके मुंह पे. So I don't think that it's very easy to instigate me. I'm a very emotional person. So more than anger, emotions instigate me. So that part of me is something which is real. Anger and these fights when it's so fake inside a house where nobody can touch anybody, not happening. But what turns you off? लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको देखकर आपका पारा सरक सकता है और असली अंदर का जो एग्रेसिव कहीं दबा हुआ विशाल है वो बाहर आ सकता है? वो you actually made me feel like वो अमिताभ बच्चन नहीं था उसमें हम में, जब वो टाइगर की तरह ऐसा बाल घुमा के घूमते. You remember that scene? You actually made me feel like that. And trust me, that is the real विशाल. वैसा होने का बहुत चांस है घर के अंदर. कि सह के एक दिन ऐसा, मतलब घर के अंदर लोग पूछेंगे ना, वोल्केनो ऐसा घूम के जो अमिताभ बच्चन आता है और ड्राइवर को निकालता है ऊपर से नीचे खींच के, तो उसका बहुत चांस है. What turns me off is मैं लोगों के बारे में बोलूंगा, मैं लोगों के पीठ पीछे भी बोलूंगा, मैं लोगों की बुराइयां करूंगा. दैट इज ओके, दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. लेकिन मैं किसी के पीछे वो नहीं बोलूंगा जो उसके मुंह पे बोलने की हिम्मत नहीं रखता. मैं उसके पीछे अगर बोलूंगा कि ये बेवकूफ इंसान है, तो उसके मुंह पे भी बोलने की हिम्मत रखूंगा कि तू बेवकूफ है. I hate people who say something behind your back and
say something else in front of your face. I'm not worried about, Bare-faced. or I don't get miffed with people who talk bad about me. I get more scared of people who have a face and talk good about me. That is my problem. So that is the thing that puts me off majorly. Yeah. एंड जैसे आपने अपने इंटरव्यू में बोला अभी स्टार्ट में ही कि आपने लाइफ देखी है, हाइज एंड लोज दोनों देखे हैं विशाल, लेकिन अब एक एक्टर हैं आप और लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, ये सब गिव अप करके घर के अंदर जाना, एंड यू नो जंगल थीम है, हमने प्रोमोज ऑलरेडी देख लिए हैं, वो सब कितने कंफर्टेबल लाइफ होने वाली है या अनकंफर्टेबल होने वाली है? See, my major portion of my life I lived in poverty. आप लग्जरी की बात करिए, मेरे पास तो नेसेसिटी भी नहीं थी. तो जहां से मैं आया हूं ना, वहां से जो जहां मैं जा रहा हूँ ये भी लग्जरी है. मेरे स्कूल का टाइम होता था 10 बजे का, ठीक है. तो 10 बजे जब मैं जाता था टॉयलेट में तो 15 लोगों की लाइन होती थी. अब ना वो वहां पीछे मेरे को स्कूल भी जाना है, प्रेशर भी है, तो वो जब टॉयलेट की लाइन में मैं खड़ा होता था ना, तो लोग जहां से देखते थे उन लोग के लिए कॉमेडी होती थी, मेरे पेट में ट्रेजेडी चल रही होती. तो मैं आगे 5 जो लोग है ना उनसे डील करता था. हमारे यहाँ शाम में 5 बजे पानी आता था 2 घंटे के लिए, और वो पानी चौक पे आता था. घर के बाहर एक चौक है, वहां पे आता था, जहाँ पे पंप से आप पानी भरते हो, वो पानी उठाते हो, बाल्टी घर पे लेके जाते हो. तो मैं आगे 5 में से किसी एक से डील करता था कि आज शाम का तेरा पानी मैं भरेगा, मेरे को अपना नंबर दे. तो वो चला जाता था पीछे, मैं उसके नंबर पे आ जाता था. फिर शाम को स्कूल से आकर मैं उसके घर का पानी भर के देता था. तो मैं उस संघर्ष से आया हूँ. तो ये तो लग्जरी है, ये तो लग्जरी है. या तो वही है ना, लोगों के लिए जो तकलीफ है, मेरे लिए वो सुविधा है. You have seen that. मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे कुक्ड फूड नहीं चाहिए, मुझे रॉ फूड नहीं चाहिए, मुझे खाना ना मिले तो उपवास में सही, मुझे नहीं फर्क पड़ता. हाँ, राइट. एंड घर का काम कितना कर लेते हैं विशाल? लॉकडाउन मैं घर का हर काम करता हूँ या पहले से? नहीं, मैं घर का काम हर काम कर सकता हूँ, और हर काम करना आता है मुझे, बिकॉज आई लॉस्ट माई मॉम एट अ वेरी यंग एज. आई लॉस्ट माई मॉम टू कैंसर व्हेन आई वाज 15 years old. सो मुझे घर का काम करना पूरी तरह से आता है. हाँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे खाना बनाना पसंद भी नहीं है. सो आई डोंट लाइक कुकिंग, एंड समथिंग व्हिच आई डोंट लाइक आई हैव नेवर लर्नड इट. बट बिग बॉस के अंदर टास्क अच्छा खाना बनाने का नहीं होता, सिर्फ खाना बनाने का होता है. तो खाना तो बना लूंगा, अगर अच्छा ना लगे तो तुम खुद बनाओ. राइट. सो बट यू डोंट माइंड डूइंग द हाउसहोल्ड कोर्स, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं एक्चुअली. मुझे किसी भी काम में कमतरता नहीं लगती. मैं जहां से आया हूँ मैंने हर काम किया है, तो मुझे तो मेरे बचपन वापस मिल जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कोई काम छोटा नहीं होता. इट इज हाउ व्हाट यू डू एंड हाउ यू डू इट. हर काम में शिद्दत होनी चाहिए, काम होता है. पता है, मैं दिस इज समथिंग व्हिच हैज रियली टच्ड मी. आज से 4 साल पहले आईसी कॉलोनी बोरीवली में जहाँ मैं रहता हूँ, वहां पर एक गटर की सफाई हो रही थी, और मैंने एक आदमी को पूरे गटर से निकलते हुए देखा, सीवेज. और मैं उसको देखता रहा. मेरी नजर में उस आदमी की इज्जत नरेंद्र मोदी से ज्यादा है. मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं अपने प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करता, बहुत इज्जत है, लेकिन उस आदमी की इज्जत ज्यादा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का काम मैं कर लूंगा, वो काम शायद मैं नहीं कर पाऊं. ट्रू. तो my life is always been like that. I appreciate things that I cannot do, and hats off to those people who do this work, and उनकी वजह से हम हैं. Right. तो वही ना, कोई मुझे बोलता है कि बाहर मेरा एक बच्चे होते हैं ना छोटे, जिनको पता नहीं होता, इनोसेंट होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे आज कचरे वाला आया. तो मैं बोलता हूँ नहीं, वो सफाई वाला है. कचरे वाले साले तुम हो जो कचरा करते हो. राइट. ट्रू. एंड क्या आपने विशाल प्रीवियस सीजन्स देखे हैं बिग बॉस के, किसकी जर्नी आपको अच्छी लगी है? मुझे प्रीवियस सीजन्स मैंने काफी देखा है. आई हैव बीन अ वेरी गुड फैन ऑफ avid fan of Big Boss. In fact, अभी Big Boss एक quiz किया था इस पे. So I won that quiz because I got all 7 out of 7 answers right. Wow. Out of all the contestants this year, I am the only guy who got all the 7 answers right. Wow. And the questions were really not easy. Very difficult questions. Like if I ask you who was that one participant internationally who came into Big Boss for 3 days? Pamela Anderson. Yeah, super. You would also won. Yeah, we have covered ना, तो इसलिए पता है. हाँ.
याद है, हाँ। बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता। को नहीं पता है. So I got 7 out of 7 and I'm glad. I was happy because I was, and she was like, तेरे को बताया क्या किसी ने क्वेश्चन? मैंने बोला नहीं यार, मैंने देख क्या थी. याद है। पिछले पार्टिसिपेंट्स से मुझे विकास गुप्ता बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि वो he was very much like बीरबल when he played the game. मैं बीरबल रहा हूँ तो I could identify. Yeah. And he used to play the game with lot of dignity and lot of intelligence. क्या होता है ना, जब लोगों के पास इंटेलिजेंस, बल का प्रयोग वही करता है जिसके पास अक्ल नहीं होती. You see, जिसके पास अक्ल है उसे बल की जरूरत नहीं. So Vikas Gupta played the game like that. Then Shukla के season में Asim Riaz was very good. Though Shukla and I are very close friends. We know each other for 20 years from Glad Rag. Shukla also के तेरे season में मेरा favorite player Asim था because Asim came from nowhere. Shukla was Shukla. Yeah, Shukla was Shukla. This handsome, good-looking guy who was already, famous. But Asim was nobody. Everybody knows him only from Big Boss. So मुझे Asim का game ज़्यादा अच्छा लगा. In fact, he was finalized just 6 hours before the show. तो मुझे उस सीजन में असीम का गेम बहुत अच्छा लगा. हाँ, but losing a friend like Siddharth Shukla, I'm sure कि जब शो ऑफर हुआ होगा, you must be looking forward कि उनको as a senior या as a ex contestant बुलाया जाता है, मिलना भी होगा शो में. वो कहीं एक more than that there is this news that nobody knows that सिद्धार्थ शुक्ला का आखिरी काम मेरे साथ है. We have done a music video in Odisha, Hindi music video. Shadab Shabri is the singer and the song का irony ये है, the song is called जीना जरूरी है क्या. Oh. Where I and Siddharth play brothers and we had shot that and we were, अगर सिद्धार्थ होता तो probably Big Boss house में जब वो आता तब वो song release होता and we would have met, But मेरी बदकिस्मती है, song अभी भी तभी release होगा where I'm inside the house. So it's two brothers in love with the same girl. साजन जो film थी. So me and Siddharth in love with the same girl. That video will be out when I'm inside the house. So Siddharth Shukla का आखिरी काम मेरे साथ है. And I'm so hurt by the fact that God took him away because if he was there, then that video would have released and he would have come inside the house. I would have hugged him and we would have. So yeah, right. And talking about meeting Salman Khan, जैसे आपने बोला आपने उनकी टिकटें ब्लैक की है, उनकी फिल्में देखी हैं, हम सब ने उनकी फिल्में देखी है, उनके साथ स्टेज शेयर करना कुछ सोच के रखा है कि ये सब चीजें उनको बोलनी है? नहीं, मैं सलमान सर से 2-3 बार मिला हूँ लेकिन सलमान सर मुझे पहचानते नहीं है. अब क्या होता है ना, वी मीट ऑन अ सोशल सर्किट. पहले वो 10 का दम कर रहे थे तब सोनी के पार्टी में मिले, बिकॉज आई एम अ फैन. हाय सर बोल दिया, ही ऑल्सो सेड हाय. तो चेहरे से वो बिल्कुल जानेंगे, उनको नाम मतलब वही है ना, द्रोणाचार्य को एकलव्य का नाम कभी नहीं पता. तो सलमान सर का मैं एकलव्य हूँ. मैं आई हैव बीन इंस्पायर्ड बाय हिम, आई हैव डन थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिम. माय बॉडी, मैंने अपनी बॉडी फिल्म बनाई बंधन फिल्म देखने के बाद. सो माय बॉडी इज बिकॉज ऑफ हिम, बट ही डजंट नो मी. तो जब मिलेंगे तो ये सारे किस्से बताऊंगा. मैं उनको ये भी बताऊंगा कि बचपन में आपने मेरे साथ धोखा भी किया, आपकी वजह से मेरी झाड़ू पिटाई हुई. हमारे एरिया में चप्पल पिटाई नहीं होती थी. हमारे एरिया में दादर में माँ झाड़ू से पिटाई करती थी, झाड़ू पिटाई. और झाड़ू भी कौन सा नॉर्मल झाड़ू नहीं, वो धारी वाला झाड़ू आता ना जिससे टॉयलेट साफ होता है. क्या बोलते हैं उसको, जिसमें ऐसी सीग होती है, पतली सी ब्राउन कलर की. ब्राउन कलर की, उससे पिटाई होती थी. हुआ ये था कि मैं चालबाज देखना चाहता था. सत्यम सचिनम में चालबाज नाम की फिल्म लगी थी श्रीदेवी जी की, और मैं रोज जाता था. वो टॉर्च वाला मेरा दोस्त था हमारे इलाके का, नंदू नाम था उसका. तो विष्णु और नंदू 2 लोग थे. वो कोई भी टॉर्च में, तो पैसे तो होते नहीं थे. वो लोग थिएटर में कोई सीट खाली हो तो बेटा चल बैठ ले देख ले वैसे. तो मुझे 3 हफ्ते से चालबाज फुल मुझे नहीं मिल रहा था देखने. तो उसने बोला एक काम कर, कल फ्राइडे, कल सुबह 11 बजे आ जा. नई फिल्म रिलीज होगी तो इधर कोई नहीं होगा. सत्यम में नई फिल्म रिलीज होगी तो इधर कोई नहीं होगा. ये तो बहुत टाइम से लगी है मैट्री. मैं पहुंचा सुबह 10:30 बजे थिएटर. वो फिर थिएटर फुल, सचिनम फुल. मैंने बोला यार, उस दिन शायद कोई पब्लिक हॉलीडे भी थी, तो सचिनम फुल. तो मेरे को बोला एक काम कर, तो सत्यम आ ही गया तो सत्यम में बैठ जा, अंदर गिन के 5 लोग हैं. तो मैं गया सत्यम टॉकीज में बैठा. गिन के 5 नहीं 8 लोग थे, मैं 9वां था. और फिल्म थी मैंने प्यार किया, फर्स्ट डे फर्स्ट शो. तो मैंने प्यार किया 1989. 7-year-old Vishal inside the theater watching the film with only 8 people. First day first show, entire theater empty. पर उस दिन के बाद, दैट वाज फ्राइडे शाम, फ्राइडे रात, सैटरडे से लेकर 75 हफ्ते तक उस फिल्म की टिकट वहां नहीं मिली है उसी थिएटर में.
लेकिन उस फिल्म में एक सीन था एंड में, धोखा ये हुआ कि उस फिल्म में एक सीन था, सलमान खान, भाग्यश्री और मोनिश बहल सर वहां गाड़ी में होते हैं और सलमान सर ऐसे साइकिल को व्हीली करके जाते हैं उनके पास, अगर आपको याद है तो क्लाइमेक्स। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उस सीन से, मेरे को लगा यार ये तो कमाल है। तो मैं बाहर आया, मैंने उस वक्त 8 रुपए घंटे में साइकिल मिलती थी हम लोग को भाड़े पे वहां पे, तो मैंने वो साइकिल लिया। अब धोखा ये हुआ कि सलमान सर ने चीटिंग की, सलमान सर ने तो वो स्पोर्ट्स साइकिल चलाई, मेरे को मिली वो दूध वाले की हीरो साइकिल। तो जैसे ही मैंने वो व्हीली की, वो साइकिल के साथ धड़ाम से पीछे एक दूध वाला आ रहा था, उसको भी लेकर जो मैं गिरा, वो दूध वाले का पूरा दूध गिरा दिया। घर पे आया, माँ ने झाड़ू पिटाई की, और बुरा इस बात का लगा कि 4 महीने तक माँ इंस्टॉलमेंट में वो दूध के पैसे भर रही थी, थोड़े थोड़े करके अपने घर के पैसे बचा के। तो सलमान सर को मैं बोला है, सर ये धोखा हुआ है, अगर आप वो नहीं चलाते तो 4 महीने का घर का पैसा बच जाता। And finally, before wrapping up, Vishal, any message to fans जो इतने साल तक आपको प्यार दे रहे हैं, अब एक आप नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं बिग बॉस के घर के अंदर? 2 बातें बोलना चाहूंगा। एक तो जब मैं घर के अंदर हूं तो आपके सबसे प्यारे सिद्धार्थ शुक्ला और मेरा एक वीडियो आएगा, प्लीज उसे ढेर सारा प्यार दीजिए। आई एम गोइंग इनसाइड दी हाउस ऑल्सो फॉर शुक्ला जी, और मेरा आखिरी काम उनके साथ है, तो बहुत मजा आएगा आपको देखने में। उनका आखिरी काम भी मेरे साथ है। और दूसरी बात ये कि मेरा कोई नहीं है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे। आपके प्यार के सहारे मैं गलियों से लेकर बीरबल बना हूं और बीरबल से बिग बॉस हाउस में जा रहा हूं। बस आप ही का सहारा है, आप ही का प्यार है। अगर मैं एंटरटेन नहीं करूं तो मुझे अगले दिन 9-2-11 कर देना, लेकिन मैं अगर एंटरटेन कर रहा हूं तो मुझे अपने उस घर में रखना, एंड तक रखना, क्योंकि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद ही को हराना है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद ही को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं इस दुनिया की, मेरे अंदर खुद एक जमाना है। वाओ, नाइस वे टू एंड द इंटरव्यू। थैंक यू विशाल एंड ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरीके से, जैसे आपने पूरा इंटरव्यू में मुझे एंटरटेन किया, अपने कैरेक्टर्स के थ्रू हमें एंटरटेन किया है, घर के अंदर भी एंटरटेन करें और ट्रॉफी के साथ बाहर आए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। बोल बम। यस, बाय, टेक केयर, बाय। बाय बाय।